Hello students, today we are going to read supplementary reader. In supplementary reader, we will read the lesson number 2, The Thief's Story. The summary of this story is as the thief is the narrator of this story himself. He assumed the name Hari Singh. He always changed his name. Hari Singh was a boy of 15. He says though he was only 15, but he was uh, but he was an experienced and fairly successful thief. As a, at a wrestling match, he meets a man named Anil. He offers to work for Anil only for food. He starts living with Anil at his house. His main purpose was to rob Anil. Anil shows his full trust in the boy named Hari Singh. He gives him the key of his house. Anil knows that the boy makes money in his daily purchase. He used to give him, he used, Hari Singh used to purchase his daily needs, but Anil does not mind his uh, about the making money by him. Hari Singh was himself a illiterate man, so he teaches the boy how to read and write. One day, Anil sells a books to a publisher. He brings home a small bundle of notes. While sleeping, Anil tucks the money under the mattress of his bed. The boy sees all this. He steals his money and runs with it in the nights. He wants to catch Lucknow Express, which leaves at 10:30 in the night. But he hesitated to jump into the compartment of the train for some unknown reason. Unknown reason. Because his conscience did not allow him to do so. He realized that Anil will show the act of stealing as an act of betraying his trust. The boy leaves the platform, but he does not know where where to pass the night. He knows no other man than Anil. He starts to come back Anil's house on his way. There was heavy rain. The notes were damp. He hurried back to Anil's room. He opens the door and finds Anil asleep. He puts the note under the mattress of Anil. Next morning, the boy awakes late. Anil has already made the tea
Anil gives the boy a 50 rupee note saying he made some money yesterday and the boy will be paid. The boy will be paid regularly. Anil knew about the dishonest act of Anil. Dishonest act of Hari Singh. All the same, he did not reveal his feelings. He said to the boy, "Today we will start sentences." The kind action of Anil changes the heart of the boy. As you know, now, now going I am going to describe the story in English, in Hindi, sorry. ये जो कहानी है एक द थीप्स स्टोरी एक कहानी है। ये इसका जो नरेटर है, इसका जो राइटर है, वो हिमसेल्फ अपने आप में हरि सिंह है, जो खुद में एक चोर है। और वो जो चोर है वो कितने साल का है? 15 साल का है। और उस 15 साल के दौरान ही इस 15 साल की उम्र में ही वह अपने काम में व्हाट वाज हिज वर्क? हिज वर्क वाज थीपिंग, रॉबिंग। तो उस काम में वो क्या हो गया था? सक्सेस हो गया था। एक रेसलिंग मैच के दौरान, एक पहलवानी मैच के दौरान ही वो किससे मिल गया? अनिल से मिला। और अनिल उसको खाने के बदले में क्या देता है? काम पर लगा देता है। लेकिन अनिल अपने काम पे, और वो लेकिन जो हरि सिंह का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो केवल अनिल को लूटना था। तो वो क्या करता है? अनिल जो है हरि सिंह पर पूरा ट्रस्ट कर देता है और वो उसको घर की चाबी देता है। डेली की जो आवश्यकता की वस्तु है वो उसको हरि सिंह खरीदता है और हरि सिंह इसमें कुछ पैसे भी बना देता है। अनिल को ये पता होता है लेकिन वह उसकी परवाह नहीं करता है। एक दिन अनिल किसी पब्लिशर को, किसी प्रकाशक को एक पुस्तक लिखने के लिए देता पुस्तक लिखने की एवज में उससे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों को वो हरि सिंह रात्रि में अनिल सिंह को अपने बिस्तर के मैट्रेस गद्दे में रखते हुए देख लेता है। और वो क्या करता है? रात में हरि सिंह जो क्या होता है, उन पैसों को निकाल करके रेलवे स्टेशन की तरफ भाग जाता है और वो रात को ही वहां से भागना चाहता है और कौन सी लखनऊ वाली ट्रेन पकड़ना चाहता। लेकिन वो उस बस में नहीं बैठा। उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसको रोक दिया और वो बस के कंपार्टमेंट डिब्बे में चढ़ने से रोक दिया। अब उसको ये महसूस होने लग गया था कि मैंने जो है अनिल के विश्वास को विश्वासघात कर दिया है। तो इसलिए वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म को छोड़ करके बाहर आने लग गया था। लेकिन उसको ये था कि मैं रात्रि कहाँ बिताऊंगा। अब रात में वो इस शहर में अनिल के अलावा उसको जानने वाला भी नहीं था। वापस धीरे धीरे वो अनिल के घर की ओर आता है। रास्ते में बारिश होती है और उसने जो उसके नोट्स से वो क्या हुए थे, गीले हो गए थे। वो धीरे से अनिल के कमरे में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वह देखता है कि अनिल सोया हुआ है। वो धीरे से रुपया नोट्स जो होते हैं उसको उसके गद्दे के नीचे रख देता है। अब सुबह रात्रि को जगे रहने के कारण सुबह वो लेट से उठता है और अनिल ऑलरेडी उसके लिए चाय बना देता है। उसके लिए चाय प्रिपेयर कर देता है और उसके हाथ में 50 रुपये का एक नोट था। ये कहता है उसको कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, ये
पैसे हैं और अब मैं तुमको रेगुलरली नियमित रूप से क्या करूँगा, भुगतान करूँगा। अनिल को उसकी हरी सिंह की डिसऑनेस्टी, बेईमानी के बारे में पता था, लेकिन वह उसके अपने भावों को वहाँ पर कुरेदना नहीं चाहता था, प्रकट नहीं करना चाहता था। और उसने उस क्योंकि हरी सिंह क्या था, एक अनपढ़ था, वो उसको पढ़ाता लिखाता भी था, तो उसने कहा उसको कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। आज हम क्या करेंगे, लिखना, प्रश्न वाक्यों को लिखना या लिखना पढ़ना सीखेंगे। क्या कि दिखाई इस प्रकार से इस अनिल के इस प्रकार के कार्यों से अनिल के इस प्रकार के कार्यों से हरि सिंह का जो है वो हृदय परिवर्तित हो गया और वो क्या करने लग गया, वो लिखने पढ़ने लग गया। और उसको ये विश्वास हो गया था कि यदि वो लिखना पढ़ना सीख लेगा तो वो एक दिन अच्छा और अधिक रुपया पैसा क्या कर सकता है, कमा सकता है। थैंक यू बच्चों, ये लेसन को आप पढ़ेंगे और इसी लेसन के आधार पर हम क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। जितने भी क्वेश्चंस को हैं उनको एक बार आप लोग क्या कर देंगे, याद करेंगे। और याद करने के बाद वही पुराना पैटर्न बेटा, वही पुराना पैटर्न जो होगा याद करने के बाद आप उनको क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।